Hello everyone, welcome to Ansagari. Today we are taking up the newspaper of 30th of October, starting with the first one. There is a regulation, there is a restriction on the burning of crackers in several states such as Haryana, Delhi, Bihar, etc. There is no, basically there is no complete ban of cracker, but selling of cracker, manufacturing, storage, it is banned. Clean air and green Delhi. Regarding the awareness of the consumer with regarding the consumer goods, legal metrological 2009 Act, it is important. It gives the information that is quantity, year of manufacturing, best unit, best before, etc. This will reduce the chances of a substandard product, as well as it will also increase the overall awareness of the consumer with regarding to the sale. Mahakumbh. It is a grand event. Mahakumbh. It major Hindu festival in the Yamuna, Prayagraj, Saraswati, etc. In 2019, Kumbh Mela was attended by 220 crore people. Expected to be thrice the size budget of 2012 Mahakumbh. 45-day religious fair, and there are many of the institutions. How the important institutions such as IIT and State Department they contribute to the nation building. Mahakumbh is very important because it is intangible heritage of India, and also it showcases it is a connectivity between the modern civilization Republic of India as well as ancient tradition. So it has celebration of community commerce, fairs, religious courses, mass gathering of monks, bathing in river. It is mean to prashad, that is atonement for past mistake. It cleans the soul. तो कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा पूरे जगह को? तो इसमें बेसिकली बात हो रहा है फ्लो का, मैनेजमेंट ऑफ क्राउड, सिक्योरिटी, परमानेंट एंड टेम्पररी प्रोजेक्ट फोकस किया जाएगा, एक्सप्रेसवे का बात हो रहा है, वाटर चैनलाइजेशन, क्राउड मैनेजमेंट, sanitation worker, 20,000 workers have been included, 2,300 CCTV camera for the security, water ATM has been established, water pump has been established for the amenities, potable water that is there. It is one of the biggest project, temporary project. This is an example of digital divide. Computer has killed me. I request you to pick. Please make me alive again. तो कंचन देवी हैज रिक्वेस्टेड वीडियो इन राजस्थान क्योंकि उन्हें पेंशन मिलने वाला था, लेकिन ऑनलाइन हुआ ही नहीं क्योंकि सी वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट। तो इसमें दिखाता है कि एक तो डिजिटल डिवाइड है, प्लस जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन सच मजदूर किसान संगठन कैसे वो हेल्प करते, कैसे वो एक प्रेशर ग्रुप से काम करते हैं, और कैसे वो जाते हैं, दे प्रेशराइज, दे मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, एंड हाउ द आधार कार्ड एंड द डेटा विच इज बीइंग गिवन ऑनलाइन, जिसमें बायोमेट्रिक होता है, फिंगरप्रिंट होता है, सब चीज, वो कभी कभी उसमें भी टेक्निकल फॉल्ट होता है, उसी कारण एक इंसान को बहुत सारे परिस्थिति झेलना पड़ता है। तो एग्जाम्पल इसका
दैट इज वाई वी नीड बोथ द थिंग, मैनुअल सिस्टम भी होना चाहिए और डिजिटल भी होना चाहिए. टेम्पल एक्सप्लोजन ड्यूरिंग द वीक एंड मंथ ऑफ दिवाली, बहुत सारे टेम्पल और बहुत सारे जो फैक्ट्रीज में भी, इवन जो डिस्ट्रीब्यूटर के घर में भी रखा रहता है फायर, जो सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना चाहिए अंडर द बिल्डिंग कोड, इट इज नॉट फॉलोड. दैट इज वाई fireworks, when they are illegally exploded, तभी it creates a certain kind of a problem and it affects the public health of the people. तो क्या बोल सकते हैं क्या होना चाहिए, तो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट एंड वेरियस सेक्शन ऑफ बीएनएस, इसके अंदर भी कंप्लेन किया गया है. लेकिन इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंशन क्या हो सकता है. पहला है कि जो फायर वर्क्स और डिस्ट्रीब्यूशन है, इट शुड बी ओनली केप्ट इन अ वेरी ओपन स्पेसेस. एक फील्ड में एक टेंट होना चाहिए जहां पर आयोजन किया जा सकता है of the selling of the fireworks rather than in a very close environment जहां पर स्केप हो ही नहीं सकता. दूसरा, फायरवर्क जहां पर है वहां पर सिलेंडर, CO2, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, ये और भी मैकेनिज्म, वाटर, ये सब रखना चाहिए. तीसरा चीज कि देयर हैज टू सर्टेन काइंड ऑफ इंस्पेक्टर, फायर इंस्पेक्टर, बिल्डिंग कोड इंस्पेक्टर, जो लाइसेंस देगी कहाँ पर ही बेच सकते हैं. क्योंकि जो एक्सप्लोसिव है, it is regulated by the Explosive Substance Act, or it creates a overall problem for the health of the people, security of the people. Growing economic divide. EAC, PM EAC, Economic Council of India, Advisory Council of India have stated कि per capita of the people of a citizen it is increasing, but जो disparity है between the region and intra region वो बहुत ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल मुंबई के अंदर में विच इज रिच, विदर्भा जो है विच इज नॉन फार्मर सुसाइड विद पॉवर्टी. तो विद इन द स्टेट ओनली देर इज अ इंट्रा रीजनल डिस्पैर. नॉर्दर्न स्टेट में भी, एक्सेप्शन ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली, उसमें भी कुछ बहुत सारी जगह में देर इज अ डिवाइड. स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म वीक होता है उसके कारण. इन्वेस्टमेंट कुछ कुछ जगह पर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस किए थे कि हाउ द जो इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी होता है ABCs, हाउ दे आर एस्टैब्लिशिंग देयर हेडक्वार्टर इन सर्टेन 2 to 3 एरियाज ओनली. बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एक्सेट्रा. तो बाकी जगह के अर्बन कॉन्ग्लोमरेट आ गए इसमें, वेर हैदराबाद, दे आर प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट. हरियाणा बगल में दिल्ली के, तो वो भी एक उनको फायदा हो जाता है. दे आर बेनिफिटेड फ्रॉम द हाई कैपिटल इनकम. कोलकाता को कम माना जाता है. कोस्टल रीजन प्रेफर्ड किया जाता है व्हेन दे आर एक्सपोर्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंपोर्टिंग चीप गुड्स. फॉर द पुअर स्टेट दे हैव लार्ज अनऑर्गेनाइज सेक्टर. लेकिन जो NEP है, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज है, वो हमेशा ऑर्गेनाइज सेक्टर पर ज्यादा फोकस किया जाता है. फॉर एग्जांपल फ्रेट कॉरिडोर हो गया, हाईवेज हो गया, ये सब जनरली ऑर्गेनाइज सेक्टर को ज्यादा हेल्प करता है. ब्लैक इकोनॉमी एक भी है. दे आर डिसप्रोपोर्शनली मोर इन पुअर स्टेट, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कम है, वहां पर रेगुलेशन ज्यादा है, और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है. तो लॉ एंड ऑर्डर इशू होगा, देयर विल बी अ काइंड ऑफ अ ब्लैक इकोनॉमी. प्लस नेट बोरिंग सीलिंग जो डिमांड करते स्टेट, वो भी कुछ कुछ स्टेट ज्यादा डिमांड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल केरला, उनको नहीं मिलता. तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि देयर इज अ skewed regional disparity within the country. एग्जिट पोल एंड मिस्ड प्रोडिक्शन. तो आजकल एग्जिट पोल का क्वेश्चन उठता है हर एक समय में. फॉर एग्जांपल CSDS सर्वे
जो हुआ था 2024 इलेक्शन में कि किसको मेजोरिटी मिलेगा। सिमिलरली अभी फिर से हरियाणा के इलेक्शन में भी आ, उसमें भी क्वेश्चन उठा था। फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इलेक्शन जो पहले हुआ था 2024 के पहले 2023 में हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन उठा था। तो मेथोडोलॉजी जो है वो सही है, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उसका जो नंबर है बहुत कम, सैंपल बहुत कम। प्लस मेनी एग्जिट पोल दे डू नॉट शेयर द मेथोडोलॉजी पब्लिकली, एक चैलेंजेस वो रहता है। दूसरा कि आप अगर हर एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में अगर कॉरेस्पॉन्डेंस का पूछ रहे हैं, उसमें भी जो कास्ट है, रिलीजन है, रे जो भी है, उस पर भी डिपेंड करता है वोटिंग परसेंटेज। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर जगह से ज्यादा पूछ रहे हैं तो उस पर स्क्यूड हो जाए, क्योंकि आज भी इंडिया में जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज में कुछ कास्ट ज्यादा रहते हैं, कुछ रिलीजन परसेंटेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी, तो वहां पर बायस हो जाते हैं। तो सीट बाय सीट प्रोडिक्शन करना मुश्किल हो जाता है उसमें, क्योंकि एमएलए और इस समय वोट में एक ट्रेंड होता है कि 2000 4000 वोट से भी फर्क पड़ता है। जब तक देर इज अ वन वे स्ट्रीट, एक लहर है, तब तक आप पता नहीं लगा नहीं सकते। इसलिए बोला जाता है कि पोलिंग और फोरकास्टिंग ये सही चीज है, लेकिन मेथोलॉजी पर फोकस करना, अवेयर ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स, इट ऑल्सो इम्पैक्ट द वोटिंग बिहेवियर एक्सेप्ट। 44th अमेंडमेंट एशियन समिट हुआ, जिस पर चर्चा भी हुआ म्यांमार कू के ऊपर, और एशियन 5 पॉइंट कंसेंसस जिसको लिया गया था, देयर हैज बीन लिटिल प्रोग्रेस। म्यांमार में पीपल डिफेंस फोर्सेस, द जनता, which had to which had forcibly to control by toppling democratic elected government unsung नियम से। तो जनता हैज बीन इन पावर, और उसके बाद एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन और पीपल डेमोक्रेटिक डिफेंस फोर्सेस, ये दोनों के बीच में क्लैश है, और देयर हैज बीन राइट्स रेजिस्टेंस और स्वाट्स ऑफ टेरिटरी जो ट्रेडी रूट है बाकी दे आर अंडर वायलेंस। 18.6 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड कू के अंदर में। 2021 में एशियान का अभी तक में बहुत इंपॉर्टेंट इसमें स्टैंड है कि एशियान अभी तक में इंटरफेयर नहीं करते थे, लेकिन पहली बार 21 में उन्होंने एक ब्रीच किया और चार्टर स्टैब्लिश किया रिगार्डिंग एशिया। इसमें 5 पॉइंट कंसेंसस है। इसे बोला गया कि आप एंड टू वायलेंस होना चाहिए, पहला इंक्लूसिव डायलॉग होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होना चाहिए, एंड ऑल्सो, लेकिन इतने सारे करने के बाद भी देयर हैज बीन लिटिल सक्सेस, नो कंप्लाइंस था। इसलिए देयर इज नीड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ मोर द नेशन, बाकी कंट्रीज को भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो आपस में होता है इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। हर एक जो एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल डिफेंस फोर्सेज कीवर्ड, इस अगर इसके पीछे ये बात करना है, देयर हैज टू सर्टेन काइंड ऑफ चैनल जो भी है नहीं। उसके बाद फिर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जैसे थाईलैंड ऑपरेट करता है, ये कुछ ही जगह पर है, इसलिए देयर इज नीड फॉर नॉन स्टेट एक्टर फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो म्यांमार के हिसाब से इंडिया पर क्या पॉलिसी है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैव एम्फसाइज्ड एशियन सेंट्रलिटी ऑफ 5 पॉइंट कंसेंसस। इंडिया ने सपोर्ट किया कि डायलॉग होना चाहिए म्यांमार के अंदर में। क्लोजली टाई है म्यांमार, क्यों? क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी से कनेक्टेड है, डेवलपमेंटल है, रीजनल इंटरेस्ट है, थ्रेट है, क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी, कालादान मल्टी मोटर प्रोजेक्ट हो गया, आईएमटी म्यांमार ट्राइलैटरल हाईवे कनेक्टिविटी हो गया, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब में एक तरह से फ्री मूवमेंट रेजीम इंडिया ने डिसकंटिन्यू किया। तो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है म्यांमार में, म्यांमार से ही पूरे एशियन का रास्ता है अगर बोला जाए, दैट इज वाई म्यांमार इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एशियन ने 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी स्टैब्लिश किया उसको इंडिया सपोर्ट करता है। ट्रम्प हैज वोन
क्यों उठा लिखा होगा? क्योंकि इसमें बात हो रहा है कि डिस्पाइट, अभी इलेक्शन होने वाला है 5 नवंबर से, इलेक्शन अब सब स्टार्ट हो चुका है, 5 नवंबर से होगा होगा तो ओवरऑल जो इलेक्शन का आउटकम कुछ भी रहे, लेकिन देयर हैज बीन शिफ्ट इन द यूएस हाउ इट एंगेजेस विद द वर्ल्ड। ट्रम्प ने एक एजेंडा सेट किया रिगार्डिंग द इंटरनल एंड ऑल्सो द एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। डेमोक्रेटिक और लिबरल आउटलेट दे वर कंपेनिंग अंडर रशियन इंटरफेरेंस इन 2016, रशियन लिंक। लेकिन एलन मस्क का जो ट्विटर है, दे आर सपोर्टिंग ट्रम्प कैंडिडेंसी कैंडिडेसी। फेसबुक, मेटा और बाकी सब वो फिर डेमोक्रेटिक पार्टी सपोर्ट करे, तो जनरली देयर इज अ डिवीजन। तो हॉर्स रेस के अंदर में देयर हैज अ फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, आइडियोलॉजिकल बैकिंग। तो उसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव आ रहा है, जिसमें फॉर एग्जांपल अमेरिका फर्स्ट, फिर बोला जाता है कि आइसोलेनिस्ट, कि आइसोलेशन में काम करना चाहिए, अमेरिका को इंटरवेन नहीं करना चाहिए। एक और होता है इंटरवेंशनिस्ट, कि हर कंट्री के अंदर इंटरवीन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, की ये भी है। फ्री ट्रेडर है, कि कोई मोनोपोली क्रिएट नहीं होना चाहिए। नेशनलिस्ट है, एक और इंटरनेशनलिस्ट है। अलग अलग थिंकर लोग जिनके बेसिस पे यूएस फॉरेन पॉलिसी काम करता है। लेकिन ट्रम्प ने शिफ्ट किया, उन्होंने बात किया है कि जो ट्रम्प ने बात किया अमेरिका फर्स्ट। दूसरा, वो बात करते हैं कि जो भी वॉर चल रहा है वहां पर देयर शुड बी विड्रॉ। दूसरा, तीसरा चीज कि जो ईयू का रोल है उसको बढ़ना चाहिए रिगार्डिंग नाटो। चौथा, कि जो ट्रेड रिलेशन है हर एक कंट्री के साथ वो कहीं ना कहीं वापस से रीनेगोशिएशन होना चाहिए, ताकि यूएस के जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट मिले, और जो नेगेटिविटी है, ट्रेड डेफिसिट है, वो कम हो यूएस के। तो रिगार्डिंग हु विंस द इलेक्शन, इट हैज सेंट सिग्नल अक्रॉस द वर्ल्ड कि चेंजेस वो। 231 ईयर्स यूएस प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन है, यही 13 कॉलोनीज था पहले। अब कुछ स्विंग स्टेट, कुछ कुछ यहाँ स्विंग स्टेट हो गए। ये वाले रीजन पूरे पूरे डेजर्ट रहते हैं। ये अलास्का हो गया, आगे में अलास्का हो गया, और नेवाडा, ये कैलिफोर्निया, ये डेजर्ट इलाका हो गया। टेक्सास हो गया ये वाला, और ये हो गया फ्लोरिडा। फ्लोरिडा, टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, ये चार सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है जिसमें सीट बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, यूपी, ऐसे टाइप की। और बाकी ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं जहाँ परसेंटेज कम है। तो जॉर्ज वॉशिंगटन फेडरलिस्ट है, 1789 में वो जीते 13 कॉलोनीज के साथ। और 1774 में इस्टेब्लिश किया कॉन्स्टिट्यूशन। 1781 में ब्रिटिशर हारे थे, दे रिजाइन एंड दे रिकॉग्नाइज 13 कॉलोनीज। और 1787 में नेगोशिएशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन पर, और 1789 तक आता है कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हो। 1860 में लिंकन ने, दे हैड किप्ट टुगेदर द ओवरऑल स्टेट, रिपब्लिकन थे, वो स्लेवरी बैन किए थे। तो ये सब तो साउदर्न स्टेट था, वो एक तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर में था, जो सपोर्ट करते थे बेसिकली स्लेवरी। कन्फेडरेट उसको बोलते हैं। दे हैड सेड कि फेडरल राइट है उनके पास स्लेवरी प्रमोट करना। और नॉर्दर्न स्टेट जो थे, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, ये सब बाकी सब, दे अबॉलिश स्लेवरी। विमेन हैव दे से 1920 में पहली बार विमेन को वोट मिला पूरा। तो फिर से रिपब्लिकन पार्टी जीते थे पूरे। सदर्न स्टेट में जनरली डेमोक्रेटिक पार्टी थे। 32 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वॉल स्ट्रीट के बाद, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन आता है, सरकार चेंज हुआ, पूरा एक एक तरफ एक लहर हुआ जिसमें फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जीते थे। और कहीं ना कहीं ये जो रिकॉर्ड 4 टर्म्स, क्योंकि द ओनली प्रेसिडेंट टू सर्व मोर देन 2 टर्म्स, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर भी आ चुका था, तो दो रूजवेल्ट थे तरह से। फिर टर्म लिमिट आ गया, जब जीत गया लगातार 4 बार रूजवेल्ट, तो क्वेश्चन उठा कि क्या वो सही है। इसलिए फिर टर्म लिमिट है, आप 2 साल 2 बार से ज्यादा नहीं कर सकते। 1951 में हैंनरी ट्रूमैन है डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे। फिर जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट है। उसके बाद फिर वापस से 1989 में रेगन है, जॉर्ज बुश है, सीनियर बुश, जूनियर बुश, फिर ओबामा, ट्रम्प, और वैसे तो ओबामा में 365 मिला था।
और ये बीडेन 306। स्विंग स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विंग स्टेट वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे बोला जाता है राजस्थान, मध्य प्रदेश किस तरफ जाएगा एक तरह से। तो नॉर्थ कैरोलिना, नेवाडा, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, जॉर्जिया, अरिजोना, ये सब जहाँ पर बहुत क्लोज टक्कर रहता है, 48%, 49% ऐसे ही क्लोज रहता है, तो वो स्विच करता है, तो उसी तरफ एक लहर होता है, ट्रेंडिंग रहता है, हम इसे देखते हैं। तो ये से रीजन है पूरा। स्टैचू ऑफ यूनिटी वेरी इंपॉर्टेंट। उस स्टैचू ऑफ यूनिटी सिर्फ और सिर्फ स्टैचू नहीं, इट इज अ इंस्पिरेशन, इट इज अ symbol of एक भारत श्रेष्ठ भारत, it is a symbol of integrity of India, unity of India, as well as fraternity among the people. आइकॉनिक सिंबल है, इंस्पायर कर रहे हैं जनरेशन। और मैन्युफैक्चरिंग मार्वल, नर्मदा रिवर के बैंक पर है, इंजीनियरिंग मास्टरपीस है, लासेन ट्यूब्रो ने बनाया था इसको, ब्रॉन्ज स्टैचू है ये, 135 मीटर मार्क तक गैलरी ऊपर में। बगल में जू भी है, 375 एकड़ में, टूरिस्ट अट्रैक्शन जगह पर है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, इसको भारत वन बोलते हैं। डायनो ट्रेल, डायनासोर्स वहां पर रेप्लिका ऑफ राजासोसोरस, राजासोरस जो इंडिया में एक डायनासोरस भी थे फॉसिल, वो भी। लाइट शो, मेज गार्डन, सदा सरोवर डैम, बर्ड्स, बोट राइड, तो एक इकोसिस्टम है, सिर्फ स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं है, बगल में इकोसिस्टम है, उससे ओवरऑल जो फुटफॉल है वो बढ़ता है और टूरिज्म प्रमोट होता है। कोविड वैक्सीन, उनका जो प्रोटेक्शन है कैसे कम होती है। Why mRNA vaccine failed to generate long-lasting plasma cell in bone marrow is a crucial question. B cell and plasma cell. They're not all B cell and plasma cell of same type. कोई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं फ्यू वीक एंड दे डाई। मेमोरी सेल बी सेल होते हैं, वो लॉन्ग टर्म रहते हैं, लेकिन प्लाज्मा सेल बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं। Some plasma cell known as long-lasting plasma cell also migrate to bone marrow and survive for extended duration. They produce antibody in longer time. The goal of all vaccine developer is for to vaccine to generate these cell in bone marrow, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। Most of the vaccine generate memory B cell, not all of them generate LLPC, long lasting plasma cell। इसलिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, इसलिए वैक्सीन का परसेंटेज और उनका जो इफेक्टिविटी है कम हो जाता है। और ओवर से म्यूटेशन भी चलते रहता है कोविड-19 के अलग अलग स्ट्रेन में, उसी कारण भी इफेक्टिविटी कम हो जाता है। डिसएंगेजमेंट ऑलमोस्ट ओवर इन डेप्संग एंड डेंगचॉक। तो आफ्टर 2019 पहली बार नरेंद्र मोदी our prime minister have met शी जिनपिंग ऑन साइडलाइन ऑफ ब्रिक्स समिट रिसेंटली इन अक्टूबर। और उसके बाद उसके पहले ही डिसएंगेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और देयर वाज अ साइन ऑन बॉर्डर अग्रीमेंट नहीं हुआ, इट वाज जस्ट कि फॉर्मल डिक्लेरेशन कि हम लोग डिसएंगेजमेंट करेंगे। और स्लोली बोथ द ट्रूप्स हैव एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट टोटल डिसएंगेजमेंट प्रोसेस। वेरिफिकेशन होगा, पेट्रोलिंग होगा, दोनों को पता चलेगा कि कौन कौन से एरियाज है जो पहले इनएक्सेसिबल तो एक्सेसिबल रहेगा, and both will give information to each other regarding the areas where they will patrol। तो जॉइंट पेट्रोलिंग भी हो सकती है। क्वेश्चन लिखा है जेल प्रोड्यूसिंग क्रिमिनल रादर देन इट इज एक्टिंग ऑन क्रिमिनल। 90% जो जेल इनमेट है दिल्ली के अंदर में दे बिकेम हार्डन क्रिमिनल बिकॉज अंडर ट्रायल रहते हैं। जो रूल्स है बाहर के रूल्स बोलते हैं, जेल का रूल अलग होता है, जो इनफॉर्मल रूल होता है उस पर चलना पड़ता है उनको। तो रिफॉर्म नहीं होता एक तरह से, वो हार्डन बनाया जाता है। वो बात करते हैं बाकी सब गैंग मेंबर और ड्रग माफी और फिर जो और अलग गैंग होते हैं उनसे, और फिर धीरे धीरे जोड़ना स्टार्ट करते हैं, गैंग मेंबर बन जाते हैं और स्लोली दे गो इनटू द साइकिल ऑफ डीप
स्टीरियोटाइप सिस्टम जो जेल के अंदर में होता है। तो इसमें बोला जाता है कि कैसे हम लोग जेल सिस्टम के अंदर में एक रिफॉर्मेटिव जस्टिस को प्रमोट करते हैं, रेट्रिब्यूटिव जस्टिस। तो पहला हो सकता है कि जो स्मॉल पेटी क्राइम है उसके लिए कम्युनिटी सर्विसेज हो गया। अंडर ट्रायल फोकस करने के लिए बेल इज शुड बी द प्रोविजन अराउंड जेल, इट शुड बी रेयर। थर्ड वुड बी फोकसिंग ऑन जेल प्रेमाइसिस, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें जो दिए के पास वो गाइडलाइन है वो फॉलो होना चाहिए। उसके बाद फिर जेल सिस्टम के अंदर में देयर हैज सर्टेन काइंड ऑफ अ ऑल्टरनेट मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी, बुक्स, चेस, गेम्स, इसे प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि जो लोग हैं वो अपना टाइम स्पेंड करे, कुछ स्किल सीख सके। फॉर एग्जांपल कुकिंग स्किल हो सकता है, बाकी से उससे केरला में एक एग्जांपल था जहां पर जोमेटो सर्विस डिलीवरी कर रहे थे रिगार्डिंग खिचड़ी और बाकी एरिया जो जेल के अंदर बना रहे थे। उससे एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो सकता है और डिपेंडेंसी ऑन द गैंग तो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसमें मॉडर्न फोरेंसिक बाकी सबको जोड़ ताकि ओवरऑल जुडिशियल प्रोसेस स्लो स्पीड हो। पार्टीशन ऑर्गेनाइजेशन UNRWA, United Nations Relief Works Agency. It was for the Palestinian refugee in 1948 and around that, when 7 lakh Arabs had to flee after the Arabian army had attacked Israel in 1948. उसका काम था कि वापस से रेफ्यूजी क्राइसिस नहीं होगा और सिर्फ रेफ्यूजी क्राइसिस को डील करने के लिए UNRWA लाया गया था। टेंस ऑफ बिलियन डॉलर हैव बीन इंक्लूडेड इनटू इट। और लेकिन तभी आज भी पैलेस्टीनियन डिसेंडेंट दे हैव नॉट बीन एबल टू रिबिल्ड देयर लाइफ, दे हैव बीन डिनाइड सिटीजनशिप वेयर देयर हैज बीन बॉर्न, फॉर एग्जांपल इन लेबनान आल्सो कुछ कुछ जगह पर सिटीजनशिप है ही नहीं उनके पास। तो ये दिखाते हैं एंड UNRWA सक्सेसफुल है, लेकिन ओवरऑल कुछ कुछ जगह पर सक्सेसफुल, लेकिन नो इंस्टीट्यूशन इज हैज बीन डूइंग बेटर बोल सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिस्टम इज कंट्रोल बाय हमास और बाकी सब। तो इसको उसी ना क्वेश्चन उठता है करप्शन पे भी। UNRWA के अंदर क्वेश्चन उठा था कि टेररिज्म को भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि कुछ मेंबर थे, दे वर पार्ट ऑफ द October 7th अटैक इन 2023। तो सोल रीजन है कि UNRWA इट शुड बिकम मोर डाइवर्सिफाई, क्योंकि रिलीफ वर्क और एजेंसी है तो इट शुड फोकस ऑन रिलीफ ऑफ ऑल द countries rather than only Palestine and surrounding. Then meth lab. It is linked to Mexican cartel busted in Greater Noida. बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल जो हमेशा सुनते हैं नार्कोस और बाकी जगह मैक्सिकन कार्टेल, तो कैसे उनका इन्फ्लुएंस इंडिया में भी। मैथ लैब ग्रेटर नोएडा में 95 kg कॉन्ट्राबैंड पकड़ाया और बहुत एक बड़ा एक सा लैब भी था अंदर में। तो बोल सकते हैं कि हाउ द ट्रांसनेशनल क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम इज इंटरकनेक्टेड, और कैसे इसको डील कर सकते हैं। NCB का रोल है, फिर इसमें इंटरपोल का रोल है, UN-DOC, यूनाइटेड नेशन एक्शन ऑन ड्रग, उसका रोल हो गया, NIA का हो गया, उनका मैंडेट हो गया, UAPA का रोल आएगा इसमें, प्लस सिटीजन अवेयरनेस, और धीरे धीरे जो कंज्यूमरिज्म है रिगार्डिंग द मिथ, कोकेन और बाकी सब, तो वो सब कैसे कम। तो हम लोग ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम, डी एडिक्शन सेंटर हो गया कि ये गलत है, और पीनल प्रोविजन स्टैब्लिश करें। सुसाइड ऑफ द ADM CPM reader in dock over suicide of the ADM surrenders before police. They have she have been accused of abetting suicide of Kannur additional district. ADM Naveen Babu was found hanging. He was criticized publicly by saying that he was corrupt, forcing the ruling CPM to remove Divya from the district panchayat president post. तो एक क्वेश्चन होता है कि हाउ पब्लिक प्रेशर, पब्लिक में जो एटीट्यूड होना चाहिए बोथ द एग्जीक्यूटिव का भी और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का भी, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। क्योंकि सिर्फ एलिगेशन के बेसिस पर एक डिफेमेशन केस भी हो सकता है
कि आप किसी के जो पर्सनैलिटी, उनका जो ब्रांड वैल्यू है वो कम कर रहे हैं, एट द सेम टाइम इनसेंसिटिविटी दिखा रहे हैं सामने के ऊपर। अगर आपके पास कोई फैक्ट्री नहीं है और आप सिर्फ बोल रहे करप्ट, बहुत सारे चैनल्स हैं, FIR है चैनल, ACB के अंदर में एक अनोनिमस कंप्लेन भी है, सब चीज़ है जिसपे काम कर सकते हैं रादर देन डायरेक्टली फोकसिंग। इसमें मेन की एस्पेक्ट है कि चाइना इज वन ऑफ द लीडर, चाइना इज वन ऑफ द लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड। उसमें अगर आप डीकपलिंग फ्रॉम चाइना फोकस करोगे तो इसे पूरे वर्ल्ड पे फोकस होगा, पर वर्ल्ड एक तरह डीकपल होगा। चाइना ग्रू 4.8%, आउटपेसिंग मेनी मेजर कंट्रीज। टेक इंडस्ट्री में बहुत जल्दी वहां बढ़ रहे हैं, 10% से ऊपर बढ़ रहे हैं। China is no mean a risk. It is a growth engine. Decoupling for China would mean decoupling from the opportunities in the world. R&D में इन चाइना आगे, चाइना बात करता है ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ फंडिंग इन्वेस्टमेंट, EIAB के अंदर, ADB के अंदर, NDB के अंदर सेक्टर। इसमें लेकिन देखिए, जैसे ग्लोबलाइजेशन 2.0 की हम बात करते हैं तो उसका एक कंपोनेंट ये हो गया कि डीकपलिंग फ्रॉम चाइना, एंड फर्स्टली वी टॉक अबाउट दैट देयर आर मोर टेंडेंसीज टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म। सो दो एलिमेंट ये हो सकते हैं। हाँ, तो कॉर्पोरेट इंडिया हैज फ्लैट स्लम्प इन अर्बन डिमांड। कुछ दिन पहले ही आया था कि थाली का दाम बढ़ गया है लेकिन रियल वेजेस का दाम कम है। फिर आया था कि 78,000 करोड़ के आसपास जो कार्स है वो बिके नहीं है। बाकी फिर FMCG कंपनीज उन्होंने बताया कि बड़े मेट्रो के अंदर म्यूटेड डिमांड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वेजेस है और जो मिडिल क्लास है, दे आर स्लोइंग देयर कंजम्पशन। तो रियल सैलरी और रियल वेज गुजर वो कहीं ना कहीं कम है एज कम्पेयर टू इन्फ्लेशन। तो अभी और भी दिखेगा कि कितने लोग इस बार धनतेरस पे और दिवाली पर खर्चा किए। अगर पिछले साल भी कम है तो इसका मतलब सही में कम है, क्योंकि जनरली लोग धनतेरस के पहले कुछ महीने, 1-2 महीना पहले वो कम करते खर्चा, वेट करते हैं इसके, क्योंकि अभी सबका समय आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हार्वेस्ट फेस्टिवल भी आएगा, उसके बाद फिर छठ हो गया, दिवाली, दिवाली तो आ ही चुका है। तो इस पे फोकस करते हैं, तो इस पे दिखेगा। ये एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल, इसको लिख लेना चाहिए एज एथिक्स में भी, बाकी जगह में कैसे सिटीजन अवेयरनेस और सिटीजन सेंट्रिक सिस्टम और उनका जो स्टैंड है अगेंस्ट द इलीगल फेलिंग ऑफ द ट्रीज, कि येलो क्रॉस मार्क कर रहे हैं सेंचुरी ओल्ड ट्रीज। क्योंकि फ्लाईओवर जब कंस्ट्रक्शन होता है तो ऑडिटिंग ऑफ द ट्रीज पर फोकस कम किया जाता है। बोला जाता है कि ठीक है ट्री को काटो और वही ट्री को कुछ कैंपस के अंदर में ट्री को प्लांट कर दो, लेकिन सेम ट्री कहाँ प्लांट हो रहा है? और जो सेम ट्री जो 200 साल से है वो तो हट गया ना एक तरह से। तो कहीं ना कहीं हेरिटेज, लोकल हेरिटेज था वो खत्म हो गया। दैट इज वाई इसमें बात हुआ कि अगेंस्ट द आइकॉनिक वाटर बॉडी एंड फेलिंग ऑफ द ट्रीज, मेनी ऑफ द रेसिडेंट हैव बीन प्रोटेस्टिंग एंड दे आर मार्किंग द ट्रीज विद येलो पेंट, गुवाहाटी के अंदर। तो बोला जाता है कि और भी एरियाज है। फ्लाईओवर्स ट्रैफिक कंजेशन का सोल्यूशन नहीं है। वी शुड फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड वाइडनिंग ऑफ ट्रैफिक। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जहां पर भी फ्लाईओवर है तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि फ्लाईओवर ऊपर है लेकिन नीचे को लाइक ट्रैफिक में और प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि फ्लाईओवर के नीचे जगह पर है ना, वहां पर कोई ना कोई स्ट्रीट हॉकर, पार्किंग, फिर धीरे धीरे और भर जाता है एक तरह। तो जनरली बात हो रहा है कि ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव रूट पे फोकस करना चाहिए। ड्रग कार्टेल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सिंथेटिक ड्रग कैसे कनेक्टिविटी है विद द गुजमैन चापो मेक्सिकन CJNG, how it is impacting or spreading its tentacle in the South Asia। कीवर्ड है यहाँ पर CJNG कार्टेल, मेक्सिको के हमें उसका ट्रेसेस मिला है, पहले भी था और लेकिन बड़े ऑपरेशन हुआ है अभी, NCB ने किया है,
95 किलो इन दिल्ली एनसीआर बाकी उनका टेंटिकल्स दुबई, राजस्थान, पंजाब हर जगह लैब भी सो ये इंटरनल सिक्योरिटी में का इशू। हाँ, ऑर्गेनाइज, हाँ, ऑर्गेनाइज क्राइम और इंटरनेशनल क्राइम का एग्जांपल है। क्राइम। हम लोग जब बियॉन्ड बात करते हैं, बियॉन्ड ट्रायंगल, बियॉन्ड फिर क्रेशन, गोल्डन क्रेशन, ये बियॉन्ड वाली चीज मान लो, हम्म। ये बहुत कम जन लिखी। तो फर्दर रिगार्डिंग साइबर थ्रेट, तो इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेप दैट कैन बी टेकन, साइबर थ्रेट बढ़ा है, 70 ट्रिलियन साइबर थ्रेट है। फॉर एग्जाम्पल एम्स के ऊपर हुआ था, आधार के ऊपर था, कोविन ऐप पे हुआ था, टेलीग्राम पे अभी एक स्टार हेल्थ है, उनके इंश्योरेंस वाले जो क्लेम है सब लीक हो गए थे। कोविन ऐप के जो डेटा है वो भी लीक हो जाते हुए थे। तो इंडिया के अंदर में इट इज वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड साइबर क्राइम। 7.5 लाख कंप्लेन है, नेशनल साइबर क्राइम क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। I4C इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, वो काम करते हैं। फिर सर्ट इन हो गया इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा क्या चाहिए, सुपर साइबर फोर्स और होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। इसमें अवेयरनेस आ गया, साइबर सिपाही इसमें आ गया, सोफिस्टिकेटेड अटैक और बाकी सबको एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में हम लोग का जो डिपेंडेंसी ऑन चाइना वो कम होना चाहिए। फिर और भी जो माध्यम, फॉर एग्जांपल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन मीडिया के थ्रू बता सकते हैं कि डिजिटल रिस्क खराब है, कैसे गलत है। फिर साइबर सेल हो गया, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जैसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल वो हो गया। प्लस साइबर पुलिसिंग, इट शुड बी अ न्यू, फॉर एग्जांपल एक हो गया लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिसिंग, एक हो गया फोरेंसिक के लिए, फोरेंसिक के लिए अंदर में हो गया मर्डर और बाकी सब, एक और हो सकता है साइबर। तो एक ई वर्ल्ड के लिए हो सकता है, एक रियल वर्ल्ड के लिए हो सकता है, अलग अलग पुलिसिंग को जो तोड़ सकते हैं ताकि और जल्दी साइबर क्राइम डील कर सके। चाणक्य डिफेंस डायलॉग ऐसे एग्जाम्पल होता है जिसमें बहुत सारे जो एक्स सर्विसमैन ग्रुप हो गए, थिंक टैंक हो गए, सेंट्रल फॉर लॉ लैंड वॉरफेयर स्टडीज और बाकी जो इम्पोर्टेंट थिंक टैंक है वो आके चर्चा करते हैं हर एक मुद्दे पर। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ AI हो गया, इनोवेशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी कैसे इम्पैक्ट करता है, नेशनल सिक्योरिटी पे कैसे हर एक चीज इम्पैक्ट करता है, पॉपुलेशन हो गया, वाटर कंजर्वेशन हो गया, इकोनॉमिक कंजर्वेशन हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, हर एक चीज। जैसे यहाँ स्टेटमेंट है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलते हैं, सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट हम्म एब्सेंस कॉन्फ्लिक्ट बट ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हम्म स्टेबिलिटी। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसका, हम्म। सिक्योरिटी का डेवलप, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नहीं, अगेंस्ट नहीं। फिर एथिक्स में इंक्लूसिव लीडरशिप के लिए कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं इंक्लूसिव लीडरशिप। पहले बात है कि बायसनेस और डाइवर्सिटी फोकस करें, खुद का जो बायस होता है हर एक के लिए वो कम करें, और दूसरे को डाइवर्सिटी उसको प्रमोट करें, समझे, बिलोंगिंगनेस को बढ़ाएं। एम्प्लॉयज मस्ट फील स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए दोनों के बीच में क्रिटिसिज्म होता है, उसको सही होता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो गया। साइकोलॉजिकल सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, बात होना चाहिए आपस में, इंक्लूजन में फोकस करना चाहिए, विजिबल कमिटमेंट होना चाहिए इंक्लूजन पर। फॉर एग्जाम्पल DEI एम्प्लॉयमेंट रिसोर्स ग्रुप इंपॉर्टेंट है, इवेंट्स हो गया। फिर इंक्लूसिव बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करें, चाहे फॉर एग्जाम्पल फीडबैक सेशन हो, टीम मीटिंग हो, ऑन बोर्डिंग हो, सोशल इवेंट हो, हर जगह। रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ द RBI इज यूजिंग, लेकिन उसके अंदर भी एक इशू हो सकता है जिन बात किया, फ्लैगिंग कंसर्न और सिस्टमैटिक रिस्क। कैसे यूज किया एनालिटिक, कस्टमर फेसिंग बॉट, बैंकिंग ऐप है, बाकी जगह में पर्सनलाइज प्रोडक्ट है। आजकल बोलता है क्रेडिट कार्ड चाहिए, ऑनलाइन जाइए, क्लिक करिए, व्हाट्सएप के अंदर में टाइप करें 100 #122, आपको जानना है कितने पेमेंट बचे, कितना हुआ, वो सब मिल जाएगा। SMS है, प्री अप्रूव लोन हो गया, एलिजिबल है कि नहीं आप, सब व्हाट्सएप पे पता चल जाएगा। आपका सिबिल स्कोर, पैसा दीजिए आपको मिल जाएगा। बेसिकली अर्ली वार्निंग सिस्टम, सब चीज। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग इज बीइंग यूज्ड और टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड टू कनेक्ट विद द बैंक एंड द यूजर। लेकिन
एक और प्रॉब्लम क्या है, जैसे टेलीग्राम हुआ कि स्टार हेल्थ वही काम कर रहा था इंश्योरेंस को लेकर के, कि आप ऑनलाइन सर्च करिए आपको पता चल जाएगा कि इंश्योरेंस हो रहा है कि नहीं, आप कैपेबिलिटी कितना है, कौन कौन एरिया में इंश्योरेंस है। लेकिन क्या हुआ, जो बॉट है ना वही लीक कर दिया हर एक चीज। तो क्या जो व्हाट्सएप है उसमें डेटा ब्रीच होगा, कैसे डील कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन होता है। डिजिटल अरेस्ट कैसे होता है, हाउ साइबर क्रूक यूजेस फियर टू लूट विक्टिम। एक नया क्राइम है जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में भी हाईलाइट किया। फॉर एग्जाम्पल पहले था कि एक अ, पहले मनी लॉन्ड्रिंग पोर्नोग्राफी पहले अलग अलग एस्पेक्ट था, अभी डिजिटल अरेस्ट है। उसमें डराया जाएगा, कॉल किया जाएगा कि आपके बेटे को जेल में रखा गया है, आप पकड़ा गया है, ड्रग्स पकड़ा है, जल्दी से आइए। एक फोटो रहेगा जहाँ पर कोई एक पुलिस वाला रहेगा, एनसीबी के अगर लोग रहेंगे तो डर जाते हैं माता पिता, वो जाते हैं और पैसे दे देते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं कि आप जल्दी से दिए और छुड़वा दिया जाएगा। तो इसमें वही बोला कि अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पर, नेवर ट्रांसफर मनी, कभी भी डिमांड नहीं करेंगे पेमेंट। सस्पिशियस कॉल पर रिपोर्ट करिए, कहाँ पर, साइबर क्राइम हेल्पलाइन में भी। दूसरा, गवर्नमेंट एजेंसीज दे डू नॉट कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन वीडियो ऑन द वीडियो कॉल, वो आके बात करते हैं। प्लस सोचिए कि अगर मैं बेटे बात करे तो बेटे को कॉल करके पूछ लेते हैं, सबसे आसान है वो। कॉल करिए, अगर बेटा उठा लिया तो हो गया, खत्म ही बात हो गया। अगर नहीं उठा रहा है तब सोचिए। तो डिफ्रॉडेड 5.9 करोड़ हैदराबाद में साइबर क्राइम हुआ था। रिटायर्ड कंसल्टेंट 2 करोड़। सबके पेंशन फंड होते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट होता है, सब लॉस हो जाता है। और सबको पता रहता है कि कौन, आजकल ऐसा है कि पेंशन, फॉर एग्जाम्पल LIC हो गया और बाकी जो पेंशन फंड जो इंस्टीट्यूशन है ना, वहां पर पता रहता है कि कौन कौन से लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको पेंशन मिलने वाला है, उनको पता रहता है। दूसरा कि कौन कौन से लोग इस महीने में रिटायर हुए हैं, ये भी पता रहता है उनको। जिस महीने में रिटायर होते हैं वहीं से कॉल आना स्टार्ट होता है, LIC ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो अधिकतर उसी में ही फ्रॉड होता है, वो पता रहता है कि ये वर्नेबल हो गया, अभी सोर्सेज ऑफ इनकम कम हो गया। तो कहीं ना कहीं डिजिटल अरेस्ट एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा कि एक फ्रॉड है विद रिगार्डिंग टू द ऑनलाइन गेमिंग हो गया, या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो गया कि आप म्यूचुअल फंड में करिए आपको 20% रिटर्न मिलेगा आपको। ऐसे ऐसे फ्रॉड भी होते फेक चैनल्स हैं, जैसे हैं। टेलीग्राम पे ही चैनल हैं जो पैसे हम्म मांगते हैं कि आपके पैसे हम्म इन्वेस्ट या डबल कर देंगे। और इसमें भी जैसे अथॉरिटीज है, एनसीबी, ईडी है, ये लोग कभी वीडियो कॉल करते नहीं है, तो अवेयरनेस हम्म जनरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली। हम्म वर्ल्ड वाइज द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू नो हाउ टू बिलोंग टू वन सेल्फ। तो क्वेश्चन उठता है कि जब खुद ही आप स्वच्छ रहेंगे तभी आप दुनिया में आप अच्छा काम कर सकते हैं। खुद को जानेंगे तभी आप दुनिया को जान सकते हैं, क्योंकि खुद को जानने से सबसे पहला बात होता है कि आपका जो रिएक्शन टाइमिंग है, आपका जो पर्सपेक्टिव है दुनिया के लिए, आपका जो थिंकिंग है, आप एक तरह से आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, आप खुद जान सकते हैं। उसके बाद ही आप ओवरऑल आप कंटेंट हो सकते हैं, स्पिरिचुअल कंटेंट हो सकता है आपको, आप खुश रह सकते हैं। उसके बाद ही आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि हर इंसान इंडिविजुअल है, आप किसी को बदल नहीं सकते। आप ऊपर ही ऊपर बदल सकते हैं, लेकिन खुद को बदलने से आपका जो चेंजेस आएगा वही एक तरह से एक रिफ्लेक्ट बैक करेगा बाकी लोग के अंदर में, तभी बदलेंगे। तो क्वेश्चन उठता है कि द यू शुड बी अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इंस्पिरेशन फॉर द फैमिली फॉर द सोसाइटी एज वेल। विवेकानंद बात करते हैं कि पहले आप सोल को आप नर्चर करिए तभी आप सोसाइटी को कर सकते हैं। अमरुबिंदु घोष भी बात करते हैं कि सुपर माइंड बनाइए अपने, पहली बात सुपर माइंड कोट एंड कोट इंटीग्रल योगा के अंदर में, तभी आप जा करके सोसाइटी के अंदर में भला कर सकते हैं। यूएन एजेंसी फॉर द पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज दैट इजराइल हैज बैंड, क्या है पहले हम लोग डिस्कस किए लेकिन एक बार जल्दी देख लेते हैं। 49 में स्टैब्लिश हुआ था, 7 लाख पैलेस्टीनियन के लिए। UNRWA सबके लिए नहीं, ये मिडिल ईस्ट के लिए। कि कहाँ काम करता है, गाजा में करता है, वेस्ट बैंक करता है, सीरिया, लेबनान, सब जगह जहां पर पैलेस्टीन रेफ्यूजी रहते हैं। नाम UNRWA लेकिन स्पेसिफिक फॉर द पैलेस्टीन। बोला जाता है कि माइक्रो फाइनेंस इमरजेंसी हेल्थ सब देते हैं। 5.9 पैलेस्टीन रेफ्यूजी दे हैव बीन डिसेंडेंट फ्रॉम द ओरिजिनल रेफ्यूजी, कंप्लीट सर्विसेज लेते हैं। दे एम्प्लॉय 30,000 पैलेस्टीनियन। तो इसमें क्वेश्चन उठता है ना कि 30,000 पैलेस्टीनियन दे हैव बीन किल्ड बाय द इजराइल, और दूसरा कि कुछ कुछ जो लोग थे दे पार्टिसिपेंट इन द October 7 अटैक, क्योंकि वो अंदर घुसते थे गाजा के अंदर में रिलीफ पहुंचाने के लिए। उनको पता रहता था कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग है, कहाँ कहाँ पर मिलिट्री वाले चेक पॉइंट है, वो नहीं। तो एक इसमें भी एक होता है। फिर इसराइल क्यों नहीं बोला, वही बात है क्योंकि मैंने ऑफ द जो एम्प्लॉयज थे
दे वेर अंडर द क्वेश्चन कि उन्होंने अटैक किया था उन्होंने। तो सिमिलरली यहाँ पर 9 एम्प्लॉयज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन यूएनआरडब्ल्यू हैव फायर्ड बिकॉज इट हैड एडेड आर्म्ड ग्रुप ऑन पर्पस। हमास को सपोर्ट किए थे। बिल पास हुआ जिसमें यूएनआरडब्ल्यू को बैन कर दिया अंदर काम करने से। तो 2 मिलियन पीपल जिनको मिलता था सपोर्ट वो नहीं मिल रहा, तो इसे बोल सकते हैं कि आरडब्ल्यू है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट आरडब्ल्यू सिर्फ पैलेस्टीन के लिए। लेकिन मेरा यह मानना है सिर्फ पैलेस्टीनी क्या होता है कि जो लोग रहते हैं उसके अंदर में एम्प्लॉयज हो गए वो पूरे पैलेस्टीनियन हो गए, तो हो सकता है करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आरडब्ल्यूए को डाइवर्सिफाई कर दे, उसको उसमें म्यांमारीज भी हो गया, उसमें सूडान वाले भी हो गए, सब चीज हो गए, उससे क्या होगा डाइवर्सिफिकेशन होगा और जो मेन मैनेजमेंट होगा वो कहीं ना कहीं अनबायस होगा फ्रॉम द इश्यूज पर्टेनिंग टू इट। और उनका जो यूएन का जो कंट्रोल वो ज्यादा होगा, फिर डोनर एजेंसी का ज्यादा होगा, तो उससे जो एड मिल सकेगा इट वुड बी बेटर ऑडिटेड, इट वुड बी बेटर। तो एज कम्पेयर टू डीलिमिटेशन 2021 में होने वाला था, आज से 150 साल पहले से हो रहा था, 1870 से ही हो रहा था। तो अभी डिले हो गया, 2025 में होगा पहला। उसके बाद ही डिलिमिटेशन होगा 2026 में, जिसमें जो विमेन्स का रिजर्वेशन ना उसके बाद ही आएगा। 33% रिजर्वेशन ऑफ विमेन इन लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोटा स्टैब्लिश किया गया, तभी हो सकता है जब डिलिमिटेशन होगा, और 15 साल तक चलेगा। आफ्टर 15 years it will be ceased to have effect. पॉलिटिकल चैलेंजेस है, पहली बात है बाउंड्री क्या पता चलेगा। दूसरा कि कुछ कुछ जगह पर फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट है जहां पर खाली विमेन ही खड़ा हो सकती है। अब है कि जो मेल है 15%, 50% जो जनता है, अगर अगले बार नहीं खड़ा होंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो राइट टू इलेक्शन है, राइट टू आप कंटेस्टेंट, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि उनको अगर मानना है उनको मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए रिवॉल्यूशन वो इंपॉर्टेंट है विद इन द स्टेट, कि अगर फॉर एग्जांपल ये स्टेट को दिया गया कि विमेन यहाँ से खड़ा होगी तो अगले बार ये स्टेट, अगला ये डिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, कोई और डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए जहाँ विमेन खड़ा हो, यहाँ पर फिर मेल आ जाए, ऐसे रिवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम चांस ऐसा होता है। कुछ कुछ जगह पर होता है कि जहाँ पर एससी पॉपुलेशन है वहाँ पर जनरली एससी रहते हैं, और जहाँ पर ओबीसी पॉपुलेशन है वहां पर भी एससी रहते हैं, और वो रिवॉल्व ही नहीं हो पाता ऐसा अपर में सीट, तो वो जरूरी है वैसे रिवॉल्व करना सीट। तो 82 आर्टिकल के अंदर में आता है रीएडजस्टमेंट ऑफ बॉर्डर और डीलिमिटेशन, आज बस 4 ही बार हुआ है ऐसा डीलिमिटेशन। और डेसिनियल सेंसस भी एक कन्वेंशन है इंडिया में, कल हमने कवर किया। हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मैंडेट नहीं है कि हाँ मैंडेट कंपल्सरी नहीं है। हर 10 साल में ही होना चाहिए। हम्म, हम्म। अभी जो भी है वो 1971 सेंसस के ऊपर है, स्टेट का 2001 पर, ये इंपॉर्टेंट है। 1971 सेंसस पर लोकसभा पर है डिवीजन, और 2001 सेंसस पर स्टेट का है डिवीजन है। तो बस अभी तक कितना हुआ, 2011 4 टाइम्स, 1952, 53, 73 और 2002, 4 बार डिलिमिटेशन हुआ है अभी तक में। आईएमएफ रिक्वायर्स गवर्नेंस रिफॉर्म टू रिटेन इट्स रिलेवेंस। हम लोग का पिछले 3 दिन पहले भी आर्टिकल पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला कि आईएमएफ जो लेंड करते हैं उस पर एक रेगुलेशन होना चाहिए कि पैसा सही में सही जगह पर जा रहा है कि, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान हर बार आईएमएफ से लोन लेता है, तो क्या सही में यूज हो रहा है लोन, उससे क्वेश्चन उठता है। बैड पॉलिसीज। तो और दूसरा आईएमएफ के अंदर वोटिंग राइट्स है 13% के पास, 60% वोटिंग राइट्स ऊपर है, तो वो बायस है। इंडिया और चाइना के पास 9% वोटिंग से रहते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन उठता है। दूसरा अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फास्ट डेवलप इमर्जिंग इकोनॉमीज, वो हो गया। G7 स्टीयरिंग कमेटी है, G20 होना चाहिए, क्वेश्चन उठाए थे। फिर जो रिसोर्सेज है उसको रेगुलेट कैसे किया जाए, स्पेशल ट्रीटमेंट है कुछ कुछ कंट्री को दिया जाता है वो भी कम होना चाहिए। आईएमएफ के अंदर में जब हम लोग एक इंटरवेंशन हो जाता रहता है सरकार के अंदर में कि आपको ये करना ही पड़ेगा, उससे क्या होता है ओवर बर्डन, इट ओवर बर्डन्स द डेवलपिंग कंट्रीज, वो कम होना चाहिए। तो फंडिंग स्ट्रक्चर उनके अंदर में चेंजेस आना चाहिए, रिफॉर्म आना चाहिए।
एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है, जैसे मेजरली आईएमएफ केटर्स टू बीओपी क्राइसिस, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हम्म क्राइसिस होती है डिफरेंट कंट्रीज में। तो अब अगर हम देख रहे हैं ग्लोबली डेट क्राइसिस जो है, जो डेट सीलिंग हिट हो रही है कंट्रीज की, क्या उसमें आईएमएफ कंट्रीब्यूट कर सकता है? तो उसमें भी रिफॉर्म्स होना चाहिए। हम्म न्यू क्यू एम क्विक कॉमर्स है ना, क्विक कॉमर्स, हाँ क्विक कॉमर्स है। और कल हम लोग पढ़े कि 2 लाख 2 लाख किराना स्टोर इट हैज बीन क्लोज्ड। जो एक एसोसिएशन थे, किराना स्टोर के एसोसिएशन थे, उन्होंने बात किया। अप्रोक्सीमेटली 13 मिलियन, मतलब वन वन 1 करोड़ से ऊपर किराना स्टोर इंडिया में, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। क्विक कॉमर्स के कारण किराना स्टोर बंद हो गए। तो ये दिखाते हैं कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर इम्पैक्ट पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, गिग इकोनॉमी ज्यादा होगा फिर, और एक तरह से वेजेस कम हो सकता है। दैट इज वाई को कंप्लेन उठा था अंदर द सीसीपीए और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में, कि कैसे इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बोल सकते हैं क्विक, जो क्विक कॉमर्स है, किराना स्टोर है, उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं ब्लिंकिट बाकी सबसे, ताकि जो इन्वेंट्री मॉडल है वो कम हो जाए। और जो किराना स्टोर है हर एक जगह पे, फॉर एग्जांपल कुछ जगह पे किराना स्टोर होंगे, वहां से रिसोर्स उठा सकते हैं और रख सकते हैं अपने पास इन्वेंट्री में। तो किराना स्टोर का जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो, जैसे जोमेटो अपना खाना तो नहीं बना रहा है, इन्वेंट्री तो उनके पास नहीं है, वो कनेक्ट कर रहा है। तो वैसे ही क्विक कॉमर्स किराना स्टोर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे हम दो मॉडल्स की बात हम्म करते हैं, एफडीआई के केस में भी एक इन्वेंट्री बेस्ड हो हाँ गया और एक इन्वेंट्री। मार्केट बेस्ड हो गया। तो ये मार्केट बेस्ड हो सकता है कि आप एक थर्ड प्लेयर की तरह बस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो सेल करने के लिए। हाँ ऐसे जोमेटो करता है आज का, ऐसा रेस्टोरेंट का हो गया 30 20 30 40% वो जोमेटो के थ्रू सेल होता है, और 60% डाइनिंग के में होता है। ऐसे हो गया। तो वैसे भी कर सकते हैं किराना स्टोर से, हर एक किराना स्टोर में एक अकाउंटिंग हो, और कोई जेप्टो से जुड़ जाए, कोई ब्लिंकिट से जुड़ जाए, वैसे एक कंपटीशन भी रहेगा। और प्लस उनको मिलेगा भी, क्रेडिट सिस्टम मिलेगा, क्रेडिट भी उनको मिलेगा, और प्लस वो बेसिक जो पहले उनका बिक्री हो रहा था, लोग आके खरीद रहे थे, अब है कि वो ज्यादा बेच सकते हैं, परसेंटेज मिलेगा। तो ऐसा लोकल में कर सकते हैं। क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है, एक कहाँ पर काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक किराना, जब मेरे दिमाग में आता है जो एक अच्छा चैनल भी लेके यूट्यूब में, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे लोकेशन है तो ये बिष्टुपुर है, उसके अंदर में अलग अलग कितने किराना स्टोर होंगे, हजारों होंगे। तो अलग अलग जोन के अंदर में एक इन्वेंट्री होना चाहिए, जहां पर उस किराना स्टोर से कनेक्ट कर दिया जाए, वहां से इन्वेंट्री उठा के वहां रख दिया, और पता चले एनालिटिक्स से पता चल जाए कौन कौन कितने लोग मंगा रहे हैं, उसे पता चल जाएगा। तो अब क्या होगा कि किराना स्टोर जब बंद हो जाता है, जब रात को 12 बजे या 10 बजे या के आसपास बंद हो जाता है, तो 10 से लेकर सुबह सुबह 24/7 चले वो। क्योंकि रात को किसी को जरूरत है सैनिटरी पैड का, रात को जरूरत है मेडिसिन का, रात को अचानक जरूरत है कुछ खाने का मन करे, कुछ मंगाना है, मैगी मंगाना है, तो मिल सकता है, मंगा सकते हैं। वो चीज किराना स्टोर जा नहीं सकते, तो उससे भी रात को डिलीवरी होगा, वो भी हो सकता है। एट द सेम टाइम दूसरा, कि जो लोग किराना स्टोर को उनको लगता था कि सेल नहीं होगा, वो सेल हो सकता है, क्योंकि उन पर ही डिपेंडेंट है पूरा पूरा सप्लाई चेन में। तो ऐसे भी हाँ, कर सकते हैं। तो जस्टिस वाले एलिमेंट में आ जाएगा कि दूसरे या फार फ्लंग एरियाज में भी ये मॉडल ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम्म अभी तो बहुत लिमिटेड है, सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है। हम्म। पॉस्को, ये इंडस्ट्री हो गया, साउथ कोरिया जो पॉस्को ग्रुप है, इट हैज साइन एग्रीमेंट विद जीएसडब्ल्यू टू इंटीग्रेट स्टील प्लांट 5 million ton कैपेसिटी जर्नी, 15-20 thousand crores have been। ये क्या, गवर्नमेंट में डिफर पिलर टू टैक्स रूल एट सीज नो नेट गेन, पिलर टू टैक्स रिजीम, मल्टी लेयर, पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये ओईसीडी ने जो प्रपोज किया था, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स टैक्स, उसका इट इज आल्सो कॉल्ड पिलर टू पिलर टैक्स। टू टैक्स, ठीक है, 15%। सूर्य घर और रेसिडेंशियल रूफ टॉप सोलर यूनिट 50% 6 मंथ, तो अप्रोक्सीमेटली 4 लाख कैपेसिटी हो चुका, 1.8 गीगावाट। अभी और भी चाहिए, अभी टोटल 11.9 है गीगावाट। 60% सब्सिडी मिलता है, 40% से ऊपर। डिस्कॉम कंपनी को ईज कर रहे हैं अप्रूवल, और भी हो सकते हैं।
फोटोवोल्टिक सेल हो गया, डोमेस्टिक कंटेंट को बढ़ाने के लिए रूल्स लाया गया था, पीएलआई स्कीम हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, रिवर्स परचेस ऑब्लिगेशन हो गया, टैक्स एडमिशन कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, तो एक ऑब्जेक्टिव। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जैसे जैसा। विश्वास, वाद से विश्वास, वो हो हम्म। गया 2.0, बाकी जगह अनोनिमस, या फिर वो सिस्टम हो गया टैक्सेशन में। हाँ, तो अभी डायरेक्ट टैक्स कोड इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, हम्म जैसे इनडायरेक्ट में तो जीएसटी भी हैव इम्प्लीमेंटेड। हम्म डायरेक्ट टैक्स कोड को इम्प्लीमेंट करने एक पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं। हम्म रेगुलेटरी फॉग अराउंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, सोशल चेंजेस जो लेके आता है, डेटा कलेक्शन हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, हर एक्सपेक्ट में। तो डेटा ब्रीच पे फोकस उठता है, फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, एल्गोरिदम का फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, लीक फ्री होना चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन हो गया, अननोन ब्रोकर कैसे डील करें। एंड ऑल्सो इट इज स्टेटेड कि regulations जो है दे मैंडेट एंटिटीज मस्ट हैव अ चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होना चाहिए, चीफ। अपॉइंट होना चाहिए, जो कि नहीं है। हम्म ठीक है। हाउ डोमेन ओनरशिप वर्क्स। तो डोमेन नेम ऑनलाइन, ओ अभी जियो हॉटस्टार वाला केस है ये, कंट्रोवर्सी, ये तो कंट्रोवर्सी पता है। तो इसमें डोनर ओवर ओनरशिप कैसे होता है? गिवन डोमेन नेम ऑनलाइन बिजनेस फ्रंट, बिजनेस नीड टू इंश्योर वर्ड कॉम्बिनेशन वर्ड्स इट इज इजी टू एसोसिएटेड, वो सर्च इंजन में आ जाए, एसईओ में आ जाए। हम्म तो ICAANN, ये साइबर स्क्वाटर कीवर्ड है। उसका काम है कि डोमेन पहले ही बाई कर देते हैं, अगर प्रीमियम में बेचते हैं, अगर उनको लगता है कि कहीं पर मर्जिंग होने वाला है या कुछ हो, तो साइबर स्क्वाटिंग बोलते हैं। लीगल पोजीशन क्या है? दो स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग टाइप प्रोहिबिट साइबर स्क्वाटिंग, उसका मतलब आखिरकार देना ही पड़ेगा रिलायंस को, अगर लीगल पोजीशन नहीं है इंडिया में तो। ट्रेडमार्क की बात किया है कि रूल इन फेवर ऑफ ट्रेडमार्क ओनर ऑन न्यूमरस ओकेजन, याहू वर्सेस आकाश अरोड़ा। याहू इंडिया वाज लाइकली टू बी कंफ्यूज, लेकिन याहू इंडिया जो है वो अरोड़ा यूज किए थे, लेकिन पहले अगर यूज कर लेते याहू इंडिया तो उसे फिर दिक्कत होती। वीपो, Reliance has won against the dispute against the Mumbai resident over domain name Jio Dandanadan. अक्षय अजय कुमार कंसल्टेंट हो बात किया था। यूएनडीआरपी, यूएनडीआरपी क्या है? यूडीआरपी, यूडीआरपी ये वो है। आईसीसीए के अंदर, आईसीसीएन जो है ना, इसके अंदर में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, इसके अंदर में डोमेन तो रेजोल्यूशन वीपो ही, पॉलिसी हाँ, है। वीपो ही करता है जो भी डिस्प्यूट, तो आई थिंक ये उसी के अंडर है। हम्म। सुनीता विलियम रिटायर्ड नेवी ऑफिसर, दिवाली ग्रीटिंग्स दिए उन्होंने। It was attended by 600 eminent Indian American, including congressmen, official, corporate executive across the. Brazil not to join China's BRI, मेजर सेटबैक हुआ है चाइना को। Brazil headed by Lula da Silva, he said that he will not join BRI, seek alternative collaborate to collaborate with China. क्वेश्चन उठते हैं यहाँ पर एथिकलिटी पर, ए मस्ट बी एथिकल, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। जीपीआई बात करते हैं कैसे हर एक कंट्री के अंदर में एआई से रिलेटेड एक्ट हो गया, फ्रेमवर्क हो गया, बायसेस हो गया, कलेक्शन में बायसेस, एल्गोरिथम में बायस, सब में डील करना चाहिए। ऐसे यूज वैल्यू कहाँ यूज कर रहा है उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। पॉल्यूशन, पॉलिटिशियन मस्ट बी टू बी बार्ड फ्रॉम पॉल्यूशन बोर्ड जॉब, सही बात।
टेक्निकल एक्सपर्टीज और इंडिपेंडेंस ऑफ द पॉल्यूशन बोर्ड को फोकस करना चाहिए, क्वालिफाइड बात होना चाहिए। कोई भी बना सकता है, किसी को भी बना देते हैं चेयरपर्सन, लेकिन जो क्वालिफाइड है, जो काम कर चुके हैं लगातार, उनको ही बनाना चाहिए। सिविल सर्वेंट को पहले बनाया जाता था, एक्सपर्टीज नहीं होता है। तो साइंटिस्ट हो गया जो सिविल सर्वेंट, जो काम कर चुके हैं, उनके पास एक्सपर्टीज है, वो पढ़े हैं, वो उनके पर वे रिसर्च किए, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें उनको बनाया जा सकता है। ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स मैकेनिज्म है जिसमें मैकेनिज्म डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ गुड्स सर्विसेज ट्रांसफर फ्रॉम वन आर्म टू कंपनी टू अनदर। हाँ, मतलब एक ही कंपनी के अंदर प्राइस ट्रांसफर होता है, उसके कारण जो भी एस्पेक्ट पर सेल होता है इनकम टैक्स कम हो जाता है ना, इसलिए उसको ट्रांसफर प्राइसिंग बोलते हैं। राइट। एक ही कंपनी का अलग अलग आर्म है कंट्री के अंदर में। सीसी पे टू स्लैब फाइन ऑन सेलेब इंडोर्सिंग रिस्ट्रिक्टेड आइटम, इसको टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया और बाकी सब हो गया, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट जिसको बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजमेंट की बात होता है, सरोगेट एड ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडिया प्लान फॉर मिलिट्री थ्रेड कमांड रेडी, 3 कमांड विल फोकस ऑन थ्रेड फ्रॉम वेस्ट नॉर्थ एंड मैरिटाइम। तो अचीविंग कंसेप्ट बिटवीन द 3 चीफ, फिर द फर्स्ट स्टेप, तो 3 कमांड है बेसिकली, वेस्ट नॉर्थ एंड मैरिटाइम। मैरिटाइम में नेवी का डोमिनेशन रहेगा आई थिंक। द कंट्री विल हैव 3 कमांड, थ्रेड फ्रॉम वेस्ट नॉर्थ एंड मैरिटाइम विच इंक्लूड आयरलैंड टेरिटरी। The three Chavis currently operating a separate communication network. Higher response के लिए nor was there a seamless intelligence gathering और connectivity, लेकिन हर कंट्री के अंदर है थिएटर कमांड, यूके, फ्रांस, रशिया एक्सेट्रा। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड कि पुराने सिस्टम पे काम करे। I think we're finished. Thank you everyone. We will take up next set of important articles for discussion for the PT and mains perspective. Do subscribe to Answer.